सुनिए, और इसका टेस्ट भी मत लीजिए। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। पाँच है, ठीक है। पाँच, अभी पाँच देखना है, एक पेज का है। एक पेज के पाँच है। साथ ही साथ याद करते जाना। सर एक पेज पर हाँ, एक लाइन का है। A straight line may be drawn from any one point to any other point. एक लाइन A straight, बात ना करें। A straight line may be drawn from any one point. Any जरूर लिखना। Any one point. Any other point. To सेम ही लिखना है ना। any other point. ये इनका मानना था कि अगर एक पॉइंट दिया और एक और पॉइंट दिया हो तो क्या इनके बीच में ईशान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है? यस सर So a straight line may be drawn from any one point to any other point. Repeat करो. A straight line may be drawn from any point to any other point. Any one point. Repeat करो. a straight line may be drawn from any one point to any other point Repeat करो. A straight line may be formed. नहीं, आप बोलो. A straight line may be drawn from any one point to any other point. Okay. बेटा अभिषेक. Straight line can be formed. No. अक्षित. A straight line can be drawn. No. ध्रुव. A straight line may be drawn from one point. नहीं आप बोलो. Any straight line may be drawn from any one point to any other point. Repeat करिए. अमितेश. A straight line may be drawn from any one point to any one another point. A straight line may be drawn from any one point to any other point. We're like A straight line may be drawn from any one point to any other point. और ये बात सही भी है, दो पॉइंट दियो तो ड्रॉ कर लो. लगा दिया. चलो अब सेकंड देखिए कि a terminated line can be produced indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. अगर मान लो terminated line है indefinitely, इसके वजह से आता है मालूम आप जो तो लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर नहीं पता है ना आपको. तो पांचों अभी पूछे, पांचों बता दोगे नाइटली. सो अ टर्मिनेटेड लाइन है, क्या ये रुकी हुई लाइन है? और क्या मैं इसे दोनों तरफ जितना दूर तक ले जाऊं कर सकता हूं यस सर कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता सो है ऐसा बुक में डॉटेड में दिखाया है. कैन बी प्रोड्यूस्ड, आप बुक में देख रहे हैं क्या? यस सर A terminated line can be produced indefinite indefinitely. बोलो ध्रुव. a terminated line can be produced indefinitely. दोनों बोलो. A straight line may be drawn from one another point. नहीं आ रहा है. यशिका बोलो. A straight line may be drawn from any one point to any another point. Any other point. Any other point. Second बोलो. A terminating line Repeat करिए. Second वाला है first वाला. कोई भी. कोई भी. A straight line may be drawn from any one point to any other point. Second वाला a straight line can be नहीं, produced. बोलो, second बोलो. अच्छा, terminated line can be produced indefinitely. Terminated. Second. A terminated line can be produced indefinitely. ठीक है. A terminated line can be produced Indefinitely. indefinitely. अब थर्ड देखिए. A circle can be drawn with any center and any radius अगर कोई आपसे कहते हैं यहाँ से सर्कल बनाओ
इस पॉइंट से विद एनी सेंटर, और कहते 2 सेंटीमीटर लेना है, तो क्या आप बोलोगे नहीं हो सकता है? हो सकता है। कहते इसे सेंटर लेके 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, तो बना लोगे क्या? यस सर। तो बना लोगे, क्योंकि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, ठीक है, विद एनी सेंटर एंड एंड एनी रेडियस। अब तीन चीजें, पहले थर्ड बोलो, फिर सेकंड बोलो, फिर फर्स्ट बोलो। Circle can be formed from अच्छा आप बोलो, A circle can be drawn from any चलो आप बोलो। The circle can be formed with any center and any radius. Wrong कहाँ and से? drawn. आप बोलो। A circle can be drawn with any center or any radius. A circle can be drawn with any center and any radius. बहुत अच्छा। सेकंड बोलो। A terminated line can be produced indefinitely. फर्स्ट बोलो। A straight line can be drawn from any. It can be drawn from any one point to any other point. अच्छा, तीनों आप भी बोलो। A straight line may be drawn with any one point to any another point. फ्रॉम है। A terminated line can be produced indefinitely. A circle can be drawn with any center and any radius. बोलो तीनों। A straight line can be formed with any one point. Can be drawn with any one point. नहीं, आप बोलो। A straight line can be may be drawn from any one point to any other point. The second, a terminated line can be produced indefinitely. Third, a circle can be drawn with any center and any radius. करेक्ट है बिल्कुल, बोलो। First, a straight line may be drawn from any one point to any other point. Second, a terminated line can be produced indefinitely. Third, a circle can be drawn with any radius and any center. पहले सेंटर बोलो। Any center and any आप बोलो बेटा। A straight line may be drawn from any one point to any any other point. Second, a terminated line perform a terminated line टिपला भी बोलिए तीनों। and A straight line may be drawn from any one point to any other point. A terminated line can be produced indefinitely. A third point, sir, a circle can be drawn from any center and any radius. With any center, from नहीं है, with any center and तीनों बेटा बोलो। straight line can be formed, may be formed. Straight line may be formed. drawn है, इसको drawn है। चलो, चलिए। Now next is fourth. All right angles are equal to one another. क्या ऐसा हो सकता है कि क्या सारे राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं? Yes, sir. All right angles are Equal to one another. equal to one another. ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय दो ही चीजें होती थी, राइट एंगल और रॉन्ग एंगल। तो इसलिए अगर वो कोई पत्थर लाते थे तो कहते थे राइट एंगल, और कोई गलत काटता है बोला रॉन्ग एंगल। तो इस तरीके से उन्होंने कहा जितने भी राइट एंगल है वो सब इक्वल है। सो फोर्थ पॉइंट क्या है सृष्टि? All right angles are equal to one another. सही है। फोर्थ पॉइंट। All right angles are equal to one another. सेकंड पॉइंट। A terminated line can be produced indefinitely. थर्ड पॉइंट। A circle can be drawn with any center and any radius. फोर्थ पॉइंट। all right angles are equal to one another. सही है, ये सिखा चारों पॉइंट। A straight line may be drawn with one point to any another point.
विथ लगा रही हो ना, फ्रॉम एनीवन, थोड़ा सा A terminated line कैन बी, can be produced indefinitely. A circle can drawn कैन बी can ड्रॉन, be drawn with same radius थोड़ा ध्यान दो, बोलो। and center. A straight line may be drawn from one point to any other point. A terminating line can be produced indefinitely. A circle can be drawn from any center and any radius, and all right angles are equal to one angle. फर्स्ट और थर्ड में प्रीपोजिशन की गलती की है आपने। फर्स्ट में एनी वन पॉइंट नहीं बोला और थर्ड वाले में विद की जगह फ्रॉम बोला, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब फिफ्थ देखो, उससे क्लास याद हो जाएगी फिर उसके बाद टेस्ट देंगे हाँ। तो आए अब ये देखो स्ट्रेट कैन, सो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, फोर्थ क्वेश्चन देखें, ये फिफ्थ वाला, सर बहुत बड़ा है कोई बात नहीं, सर इसे बिल्कुल ये देखो ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसे क्या कहते हैं बोलो? ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल, जो दो लाइनों को कट करे उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन क्या ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और इसे जो कट करी अभी भी ट्रांसवर्सल है? बोलो। टू पैरेलल लाइंस होनी चाहिए ये ठीक कह रही हैं। लाइन कट कर दिया उसे सब सौम्या ने सिर्फ सही कहा, किन्हीं भी दो लाइन को कट करे वो ट्रांसवर्सल, इनका सही है। ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? कोई दो लाइन को जो कोई एक लाइन कट करे उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अब जरा देखो, तो यहाँ बात क्या कही गई है? इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, क्या एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है? बोलो। दो Yes, स्ट्रेट sir. लाइन पे आप, पर दो स्ट्रेट नहीं है ना ये कौन से स्ट्रेट नहीं? दोनों ही तो स्ट्रेट है। अभी क्या मैं बनाया। मोड़ मोड़ के बना रहा हूँ? पैरेलल नहीं है स्ट्रेट है ना। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, पहले इतना ही याद करो, इतना ही सबसे पूछेंगे। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, इसको एक पार्ट में आपको, if a straight line falling on two straight lines, make the interior angle on same side of it taken together, makes the interior angle angles on same side of it, on सेम साइड same side of it taken together, हाँ, on same side of it taken together makes the interior angle on the, अब इसका मतलब समझो, makes the interior angles on the same side taken together, क्या ये वाला 1, 2 और 3 और 4 ये कैसे एंगल है? एक्सटीरियर ये सारे कैसे एंगल हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। अब बोलो 5, 6, 7, 8 कैसे हैं? इंटीरियर So angle 5, 6, 7 and 8 these are इंटीरियर interior angles हैं। So makes the interior angle on same side, क्या ये दोनों सेम साइड में पड़ रहे हैं? Makes the interior angles on same side taken together, ये दोनों एंगल हैं, इनको एक साथ ले लो। अच्छा यहाँ पर बताओ कि ये अगर 60 डिग्री है तो कोई मुझे बताएगा ये कितना है? सर 60 डिग्री बोलो। नहीं, मान लो सर- जैसे ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? सर 180 माइनस 60 क्योंकि ये 60 डिग्री है तो अब इसमें बच गया, ये टोटल 180 है। तो कैसे हमें तेज ने बता दिया 120 है? तुरंत बता दिया।
क्योंकि वो उनको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है 180 180। तो जैसे मैंने 60 बोला, इन्होंने कहा सर बाकी 120 है, उनको समय नहीं लगा बताते। अच्छा ये बात समझ आ गई, ये 60 है तो ये 60 है, और ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। अच्छा ये 60 तो कोई मुझे बताएगा ये कितना है, 120 क्योंकि ये भी फिर एक लाइन है। सर वर्टिकली ऑपोजिट ओके है। चलो बहुत अच्छी बात है। और ये अगर मान लो आपकी बुक में ऐसी बहुत सारी लाइन और एक कट कर रही है, और मैं आपको ये बता दूं ये 120, तो क्या ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी, यस सर। क्योंकि ये सब करस्पॉन्डिंग है। हाँ, अपनी बुक में एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये 120 है तो ये कितना हुआ, 120 और ये कितना हुआ 60 60। अच्छा इन दोनों का सम करो। 180 कहीं तुम अर्पिता ये तो नहीं कहना चाहती कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री है, ऐसा तो नहीं कहना चाहती हो? या फिर ये कहना चाहती हो कि टू राइट एंगल्स हैं, क्योंकि टू राइट एंगल्स का मतलब है 2 × 90 डिग्री। सो अब हमें बताओ अर्पिता, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर मैं थोड़ा सा इसमें तिरछा कर दूं, इसको या इसको तिरछा कर दूं, तो क्या यही हालत होने वाली है? दबा दो, तब ये 60 रह जाएगा कि नहीं, अब 50 रह जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। मैं सिर्फ ये एंगल है और मैं ऐसे कर दूं तो ये बढ़ जाएगा, और ये वाला कम हो जाएगा। देखो कम हुआ कि नहीं। पहले इसकी स्थिति कैसी थी, क्या पहले ये ऐसा था, बोलो, और मैंने तिरछा कर दिया तो अब ये 50 नहीं रह गया, और ये बना रहा कितना 120। अब इनका सम बताओ, 170 क्या अभी भी ये टू राइट एंगल्स है कि लेस देन टू राइट एंगल्स? लेस देन 2 राइट एंगल। अच्छा तो क्या इन दोनों लाइनों को मैं इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करूं तो किधर मिलेगा, जिधर लेस देन टू राइट एंगल्स है या जिधर मोर है? जिधर लेस है। भाई आप ये 50 देखें तो इधर बचा कितना, क्या 130? Yes. 180 है, और ये 60, और इधर इनका सम कितना हुआ, क्या 190 है? यस सर। तो क्या ये मोर देन टू राइट एंगल है, बोलो? यस सर। मोर देन टू राइट एंगल। और 170 क्या होता है, लेस देन 2 राइट एंगल। लेस देन टू राइट एंगल। सो ध्रुव मुझे ये बताओ कि ये अगर इनको मैं इधर भी बढ़ाऊं इधर भी बढ़ाऊं तो इनके इधर मिलने की संभावना है कि उधर उस साइड होगा? अच्छा अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ तुम्हें इतना बोलना है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इतना बोलो, Sir, if a straight line falling on two straight lines. ठीक है? और मेक्स द इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल बना रहा है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट। इसी स्ट्रेट लाइन की तो बात हो रही है, क्या मैं इसी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ जो फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, क्या मैं इसी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ? सो अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, पता नहीं कौन से दो स्ट्रेट लाइन मालूम नहीं है। सो इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, सेम, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, इतना बोल के दिखाओ। If a straight line is falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together. बहुत बढ़िया, इतना बहुत कम लोग बोल पाएंगे, बोलो। If a straight line falling on two straight lines मेक्स द, बोलो साक्षी। If a straight line falling on two straight lines, Sir, makes on the the- interior angle fall on the same side of it taken. Makes the interior angle on the same side, on the same side of it, ना, taken together, सही है? बोलो जरा। If a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together. बहुत बढ़िया बोला आपने, पूरा वही बोला, बोलो बेटा। If a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of the page. बोलो बोलो। Straight line falling Two on straight- if a straight line falling on two straight line make the interior angle on the same side of the page.
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? बोल सकोगी? हाँ. बोलो. If a straight line falling on a two straight line makes an interior angle same Makes the interior interior angle angle same to the on the same side of It. it taken together. सही है? बोलो यशिका. If a straight line is falling from two straight lines, the interior angles on the same side of it is taken together. Makes the interior angle on the same side of it taken together. On the same side of it taken together. On the same side of it तक समझ में आ गई? Yes, Makes sir. an interior on the same side of it. Now अब यहाँ से अलग कर दो. Taken together is less than two right angle. Less than two right angle. अगर वो एंगल कितना पाया गया? Less than two right angles. अगर वो taken together less than two right angle तो किधर ये मिलने वाली है? Then the two straight lines. अब इन दोनों की बात करो. Then the two straight lines, if produced indefinitely, यदि उन्हें बढ़ा दिया जाए, then taken together less पाया गया कि नहीं? Then the two straight lines, if produced indefinitely, then the two straight lines, if produced indefinitely, इतना बोल के दिखाना है, सिर्फ बाद वाला, पहले वाला भी नहीं. टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल. वो जो एंगल हमने पाया वो टेकन टुगेदर कितना है? सुनो, टेकन टुगेदर. अब अपने मन में इस लगा लिया, इस दोनों ने नहीं लगाया तो नहीं लगाया. टेकन टुगेदर इज less than Two right two angles. right angle. Then the two straight the lines. two straight lines if produced indefinitely. Repeat करो. Studying sir. Taken together से. Taken together less than two right angles, हाँ. then the two straight lines produced indefinitely. If produced. Indefinitely. अब पूरा मन में सोचो, अभी फिर से तुम्हारे पास आते हैं. Taken together से बोलो. Taken together less than two right angles. Then the two straight lines if produced indefinitely. अब वो बाकी की दो लाइनों को हमने दोनों को बढ़ा दिया. बोलो. Taken together less than two right angles if the straight lines are फिफ्थ पोस्टुलेट को अलग से लिखवाऊंगा, जो सही करेगा उसकी चॉकलेट है. फिफ्थ को सबसे पहले लिखवाऊंगा. पहले हाँ, और फिर पांचों लिखवाऊंगा. तो फिफ्थ में एक भी इफ और बट की गलती नहीं करना. Okay sir. ठीक. हाँ बोलो. Taken together less than two right angle. If two straight lines है ना, then the two straight lines if produced indefinitely. बोलो बेटा. Taken together less than two right angle. यदि मान उन दोनों को ले लिया तो वो taken together less than two right angle है. जो two right angle कितना होता है? 180. तो लेस है. और if two straight lines produced indefinitely तो ये कहाँ मिलेंगी बताओ? किस साइड मिलेंगी? राइट साइड. जहाँ पर लेस है वहीं तो मिलेंगी. सो अभी भी इतना बोलो टेकन टुगेदर से. Taken together is less than two right angles. Then Then the straight line. then two straight lines Two straight lines are produced. if produced. If produced. Repeat करो. Taken together. Then the two straight lines if produced. बस इतना बोलो बेटा. एक लग नहीं साथ में taken together. Less than two right angles. Then the
less than two right angles, then the two straight line is produced. पूरा बोलो. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together is less than two right angles, then the straight line if produced indefinitely. और इस ना लिखना, ये इस अपने मन के लिए रखना. टेकन टुगेदर इस अगर लिखना भी तो काट देना, इस माना नहीं जाए. बोलो. Taken together less than two right angles, then the two lines if produced indefinitely. स्ट्रेट लाइन बोला. बोलो बेटा एक बार. Taken together straight line falling on two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely. सही बोला. Straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side taken together टेकन टुगेदर. taken together less than two right angles. So wait, we got Less than two right angles are equal to that. Then two straight lines if produced indefinitely. Then that. सर ऑफ इट भी नहीं बोला था. ऑफ इट नहीं बोला. ये भी देखो. सेम साइड ऑफ. अर्पिता ऑफ इट भी नहीं बोला. सर एक बार मेरे से अभी बस थोड़ा सा और बता दें फिर बस. सर प्लीज मीट ऑन दैट साइड. सर प्लीज एक बार पूछो. देखो अभी बिल्कुल पूछने ही वाले हैं. मीट On that side on which the sum of two right that angles is less side. than. Meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle. On which the sum of angles is less than Right angles. two right angles. Two right angles. Meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. ये बहुत आसान है. अभिषेक बोलो. Meet on that side on which the sum of angles is less than two right Meet on angles. that side. Meet on that side on which the sum of two angles is Sum of angles. meet on two lines on Meet on that side meet on that side on which sum of two angles on which the sum of angles is less than two right angles. Repeat करो. Meet Meet on that side on which the sum of two sum of angles sum of angles are less than is two less than. is less than two right angles. Repeat करो. Meet on that side on which the angles On which on which the angles the sum of angles. sum of angles is less than two right angles. Repeat करो. सौम्या. Repeat करिए. Meet on that side of which sum of the angles is less than two right angles. On which the sum of angles. On which the sum of angles is less than two right angles. दा शिफ्ट करो. दा उधर बोल दिया. Repeat करो. Meet on a straight line. नहीं ऐसा नहीं होता. बोलो शिफ्ट. हाँ. Meet on that side. Meet on that side. Meet on that side On on which the sum of angles is less than two right angles. okay. Repeat करो पूरा. in a straight line falling on two straight lines on the same side of the straight line. एक बार फिर आएंगे आपके पास. Repeat करो पूरा. If a straight line follows on सर आप पूछ लो. straight line makes the interior angle on the same side of two taken together taken together less than two right angles, then the two straight line may be produced in indefinitely. If can be produced indefinitely.
If produced indefinitely, meet on that side. Meet on that side on which the sum of angles are less than divided. Sum of angles is Less than divided. रिपीट करिए. सब ऐसे पूरा पूछ देना है. हाँ पूरा पूछेंगे. If a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side. Meet on that side on which the sum of two angles is less than two right angles. Sum of angles. Sum of angles. है ना? Meet on that side on which the sum of angles is less than. सही है और बाकी सही है. हाँ बोलो. Two नहीं बोलते. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together, taken together less than two right angles, then the two sides, then the two lines. Then the two straight lines. Then the two straight lines, if produced independently, meet on the side. Meet on that side. Meet on that side. The sum of On which the sum of two angles. sum of angles. Sum of angles in which Sum of angles is less than two, and sum of angle is less than on which the sum of angles. On which the sum of angles is less than two right angles. जहाँ पर उनका सम less than two right angles उधर तो मीट कर रहे हैं. नहीं? आगे लाइन देखो एक बार बोलो. Straight line falling on straight line makes the interior angle on the same side of which taken together is less than two right angles. Diagram देखें. Taken together less than two right angles, then the straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. ये गलत बोला है. Two straight lines होना चाहिए. Two नहीं बोला. समझ में आई? मैंने टू बोल दिया, उसने टू नहीं बोला. बोलो. अर्पिता रिपीट करोगी? सर मैं So एक बार फिर से स्टार्ट करें. अच्छा. इतना समझ में आ गया? आगे नहीं है क्या? खाली अभी हाँ? इतना ही लिखना है. वो मैं डायग्राम भी छोड़ दे रहा हूँ. सर वो मिटा दो. थोड़ा समझ में आ जाएगा. चलो चलो. ध्यान दो बेटा दो. सर एक कोमा भी लगाना जरूरी है. कॉमा का छोड़ देंगे. कॉमा का छोड़ देंगे. वैसे मैं बता दूं कहाँ कॉमा है. देख लो उसमें यही कॉमा है ना. और तो नहीं है. और एंगल्स के बाद है. टू राइट एंगल्स के बाद कॉमा है. एक कॉमा राइट एंगल्स के बाद है. एक सर कोमा छोड़ देना बस. छोड़ देंगे. लास्ट वाली लाइन याद हुई सर. बुक में देखो. मन में चल. बस बेटा अब चलो. सर लास्ट वाली लाइन है जो ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स. उसमें एंगल कितने हैं? एंगल हाँ. इसमें सुनिए. ऑल राइट एंगल. पोस्टुलेट 1. सुनिए बेटा बात इधर देखिए. इसका एक एक्सियम है. वो रह गया. तो एक्सियम क्या है? पोस्टुलेट 1 का एक्सियम है. हाँ उसी का एक अपेंडिक्स समझो. सो 5.1 मतलब 5 थे. तो इसका एक जो क्या है बताइए. एक्सियम 5.1 क्योंकि वो पहले के ये चैप्टर है 5th. और 5th चैप्टर है तो इसमें जो एक एक्सियम आया उसको उन्होंने नाम दे दिया 5.1. जैसे थ्योरम होती है ना अलग अलग चैप्टर में.
तो 7th चैप्टर की थ्योरम को 7.1 7.2 ऐसे कहा जाता है। तो 5th चैप्टर के एक्सियम को क्या कहा गया? 5.1। एक और अगर एक्सियम कहीं आगे तो ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर देखें, लेट अस राइट एक्सियम। आप पेज नंबर 85 निकालो। क्या 85? हाँ, क्या वहाँ एक थ्योरम भी आई है? थ्योरम पहली थ्योरम। यस सर। तो उसे क्या नाम दिया गया? थ्योरम 5.1। यस सर। हेडिंग, बोल्ड हेडिंग देखो, यस। पेज नंबर 85 का ठीक ऊपर। तो अगर पहली एक्सियम है तो उसे एक्सियम 5.1 कहा, और अगर पहली थ्योरम है तो उसे क्या कहेंगे? अगर 6th चैप्टर में थ्योरम आई होगी तो 6.1 6.2 उसमें 12 थ्योरम है, तो वहां पर 6.1 6.2 करके चलेंगे। समझ में आएगा? चलो अब देखो, अब हम लिखते हैं एक्सियम 5.1, यानी गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हों, देयर इज ए यूनिक लाइन, ये दो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो अर्पिता बोल रही थी कि इनसे एक ही लाइन पास करेंगे। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है? 1। तो सौम्या ने कहा नहीं अर्पिता, तुम गलत हो, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से 2 लाइन पास कर सकती है। मैंने नहीं बोला था। अच्छा चलो, सौम्या ने नहीं बोला, तो अब हो सकता है सौम्या को लाइन की डेफिनेशन ना पता हो। अच्छा, सौम्या ने बोला ही नहीं। सो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, there is a unique line, there is a यूनिक लाइन, unique line, सिर्फ एक लाइन पास करेगी, कर्व्ड लाइन, ठीक है, that passes through them, that passes through them। अब जरा देखो, अगर सिंगल पॉइंट है तो कितनी लाइन पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं सिंगल पॉइंट से। और ये बताओ, सिंगल पॉइंट है, 1 पॉइंट से कितनी लाइन? इनफाइनाइट लाइंस। और 2 पॉइंट से कितनी लाइन? 1 लाइन, 1 लाइन। और 3 पॉइंट से बोलो, ये 3 पॉइंट से कितने लाइन? बोलो, ये सही बताया। बोले इफ कोलिनियर देन 1 लाइन। 0। इन्होंने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने भी अच्छा बताया। बोला 3 If straight then 0। इफ कोलिनियर, एक अगर तीनों एक ही इवनली लाई करेंगी तब तो एक लाइन पास कर जाएगी, और नहीं तो कर पाएगी। ऐसे भी तो कर सकते। ये नॉन कोलिनियर, ये कैसी बताओ? क्योंकि एक लाइन पे पड़ ही नहीं रही है तो नॉन कोलिनियर नहीं है। और जो एक ही लाइन पे सारे पॉइंट पड़ जाए वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये कैसे पॉइंट्स है बताओ? और ये कैसे पॉइंट्स हैं? तो कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट्स यानी 3 पॉइंट से लाइन पास कर भी सकती है, लेकिन करने की यशिका क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोलिनियर। और अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो नहीं होंगे। 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास करेगी? अगर कोलिनियर और है तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट। बोलो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। तो इसी बात पर आप मुझे एक्सियम 5.1 रिपीट करके दिखा दें। बोलो। Given two distinct points, there is a unique line passes through them. Given 2 distinct points, there is a unique line passes through them। बोलो, बात समझ आ गई? पोस्टुलेट 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर पोस्टुलेट 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? पोस्टुलेट 2। तो 2 को कैसे लिखा जाएगा? और देन पोस्टुलेट, पोस्टुलेट 3, फिर पोस्टुलेट 4। तो इसकी पोजीशन समझ में आ गई। और ये क्या हुआ? 5। पोस्टुलेट 5 की बात समझ आ गई। तो ये पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट और ये एक्सियम लिख के दिखा सर अभी फिर से क्योंकि इसके साथ लिखो। नहीं मैंने भूल गया। ये क्या है? सर वहाँ पे हमें
नहीं वो ब्लू वाला क्वेश्चन सर एक मिनट रिवाइज कर कैन बी क्लास का है अपने क्लास का इंक्रीज एंड लार्ज सर एक मिनट Given two distinct points. दैट पासेस चलो हो गया ये मैं सर एक मिनट रुक देखो एक मिनट और जो गलती पीछे की है उसको भी ठीक करना है। अगर कोई गलती नहीं की है और इस बार गलती यस सर यही होने वाला ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी गलती So example 1 ध्यान से देखिए पहली बार कुछ सॉल्व करके आया है if A, B and C are 3 points on a line ठीक है A, B, C points है बात नहीं करिए ध्यान दीजिए if A, B, C points on a line A, B and C points on a line and B lies between A and C B इनके बीच में है तो आपको ये प्रूव करना है कि AB प्लस BC इज इक्वल्स टू तो गिवन क्या है बताइए सबसे पहले गिवन लिखना पड़ता है ABC are 3 3 points points B lies between A and C 3 points on line अगर कोई पॉइंट्स ऑन लाइन में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं क्या कोलिनियर पॉइंट्स यस सर कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं अच्छा B lies between A and C B A और C के बीच में लाई करता है सर आपने एकदम सेंटर में ड्रॉ किया B lies between A and C हाँ जी ये वो स्विच जो लगाया था वो उसमें से जलने की स्मेल आ रही है तो उसको अगर जल जाएगा तो भी पैसा लोगे आप हमसे क्या उसका हाँ क्योंकि हम तो एक हफ्ते से कह रहे हैं कि अपने उसको भेज दीजिए अगर वो वायर पीछे से लीक है तो वो 750 तो आप ले ही लोगे फिर नया स्विच भेज दीजिएगा हम इसका भी देंगे आप तब तक लगाते रहो जब तक हाँ तो वो करना चाहिए ना पूरा काम तो जब आपको कोई चीज़ की जिम्मेदारी है वो चल रहा है स्विच ठीक है तो हम कई बार पैसा देंगे सो B lies between and C A and C B A और C के बीच में लाई करता है ठीक है नाउ अब आपको प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ ये पहला प्रूफ आया है अभी तक ऐसा कभी नहीं आया ना आपके बुक में 5 चैप्टर में तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC अब प्रूफ देखो इसको लिखते हैं टू प्रूफ और ये फिर क्या लिखेंगे प्रूफ अब जरा देखो नाउ कि इन दिस फिगर एक इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो तो ये जो लाइन AC है क्या वो AB प्लस BC से कोइंसाइड कर रही है यस सर two things which coincides with each other are equal to One another. ये कौन सा एक्सियम है Axiom चेक करो fifth मुझे fourth फोर्थ करना तो यहाँ पर देखिए Axiom. AC coincide with AB plus BC बरोबर सही है यहाँ समझ में आई बात AC coincides with किससे coincide कर रहा है अब जरा देखें so things which coincide with each other जो coincide करती है वो अरे कल लगी थी ना ध्रुव
तो कहते हैं संडे को सुबह आए थे तो वहाँ हम लोग भी थी पहले अपना टेस्ट पेपर के भागो नाउ एज पर एक्सियम 4 क्या लिखेंगे? एज पर एक्सियम 4 Things which coincide with one another is are equal to one another. which अच्छा coincide ऐसे लिखना पड़ेगा इसलिए याद करने पड़ेगा each other are equal to one another. तो क्या आप AC जब इससे कोइंसाइड कर रहे थे क्या उसे AB प्लस BC लिख सकते हो? यस सर So AC is equals to AB plus BC hence proved. बस जिसने ये लाइन ठीक लिख दी उसके 3 नंबर, जो 1 नंबर का एग्जाम था वो 3 नंबर का बन गया। सर तो ये जो ऐसे भी लिखना पड़ेगा 3 नंबर का क्वेश्चन। सर तभी आप इसका टेस्ट लोगे देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो एग्जाम कौन सा है, ये तो याद रखना पड़ेगा। और आपको डेफिनेशन नहीं याद रखनी पड़ेगी, आपको पोस्टुलेट नहीं याद रखने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम याद। हाँ सर ये तो याद सिर्फ रखना एग्जाम। हम सुना दें देखो, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स वो रिजल्टेंट आर इक्वल, द The होल आर wholes are इक्वल, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। The remainders are equal. Things which coincide with each other Are equal to one another. ठीक है? Doubles of the same thing. Sir, whole is Equal to- greater than the part. हो रहा है. Whole is greater than the part. Double of the equal things are equal to another. Halves of the ये same thing है ना? Are equal Are to equal to another. अब जरा देखो, ये आपने प्रूफ समझ लिया कि वो उसके इक्वल है। आगे बढ़ो। Now नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। Example 2. नहीं कुछ बीच बीच से कराएंगे, फिर हम एग्जाम्पल तो भी कराएंगे। तो अब आगे आ जाएं कि एक्सरसाइज 5.1। First question. एक्सरसाइज 5.1. 5.1 पे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। यानी पहली चीज आपको बतानी है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सौम्य ठीक है, ट्रू लिखें। False. false. Infinite lines can pass. तो फर्स्ट है, क्या किसी सिंगल पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास करेगी? तो ये फॉल्स हो गया, जैसा कि सौम्या ने बताया। अच्छा ठीक है। There are infinite number of lines which passes through two distinct points. False. Two distinct points से क्या बहुत सारी लाइनें? False. अच्छा थर्ड देखो, a terminated line can be produced indefinitely on both sides. True है। Yes sir. Second question. और फोर्थ देखें, if two circles are equal, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो क्या उनके रेडियस इक्वल होंगे? Yes sir. So true. Radius का और फिफ्थ, AB PQ के इक्वल है। ये देख लो, ये AB है, बात ना करें बेटा। अब पिता कौन बात कर रहा है? देखो आपके आसपास AB PQ XY क्या दिया है फिफ्थ में? AB किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। और XY भी किसके इक्वल है? PQ. तो AB भी XY के equal होगा. तो ऐसा सर ये कौन? फर्स्ट एक्सियम ना शायद तो वो एक्सियम या देखो वो क्वेश्चन दिया है AB PQ के इक्वल है। पढ़ो क्वेश्चन। The fourth होगा ना? if equal things फर्स्ट are है थिंग्स are equal Which are equal to same thing are equal to one another. are equal to one another. है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग। Are equal to one तो another. क्या ये दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं? Yes sir. तो क्या ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी? Yes sir. तो लिखो थिंग्स एज पर एक्सियम। सर सब में लिख देना। हाँ, एज पर एक्सियम 1 थिंग्स। सर आपने कहा था डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, वो भी तो लिखनी पड़ती है. कहाँ लिखनी पड़ रही है? एग्जाम से ही तो आ रहे हैं। कहाँ डेफिनेशन? ये एग्जाम 1 नहीं है। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर Equal to one another.
इक्वल टू वन अनदर, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मान लो ये क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। यस सर। सो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या वो भी यही बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ट्रू लिख दें इसको। Yes, sir. तो इसको नोट करते जाओ, ये चीज नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, कर लो। कर लिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन पे आइए, फोर्थ क्वेश्चन पे। एग्जाम याद नहीं है मेरे को। एग्जाम तो मैं एक भी नहीं दी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, पहले प्रूफ वाले सारे कराते हैं। Okay. If a point C lies between 2 points A and B, fourth question. क्या ये देखो, then prove that A और B के बीच में एक पॉइंट C लाई कर रहा है, between का मतलब बीच में, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, so such that AC किसके इक्वल दिया है, BC के इक्वल, ये चीज दे दी गई। सो गिवन क्या है, AC equal to AC is equals to BC. ठीक है, AB is a line and C lies on it, क्या C उसी पे पड़ रहा है, ये गिवन में लिखना है। गिवन है AC एक लाइन और C उसी पे है। और बताओ सच दैट, क्या AC is equal to BC भी दिया है, बोलो। अच्छा, तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल्स टू हाफ AB। अच्छा, मुझे कोई ये बता दे कि क्या AB AC प्लस CB से कोइंसाइड कर रहा है, प्रूफ देखिए। सर AC plus AC देखो AB कोइंसाइड्स विद AC प्लस BC, एक बार फिर से समझो। क्या मान लो ये कि AB मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी AB, तो ये जो AB है, AB तो AB ही है, तो क्या AB जो है AC प्लस CB से कोइंसाइड कर रहा है। सो AB कोइंसाइड्स, किससे कोइंसाइड कर रहा है, अभी पहला सवाल किया था कि नहीं, विद AC प्लस CB, बोलो है, AC प्लस CB से कोइंसाइड कर रहा है। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये कौन सा एक्सियम है, सर एक्सियम नंबर 4. देखो बाई एक्सियम 4, यस सर। थिंग्स विच ये क्या था? एकदम से पता नहीं कोइंसाइड होता है कि क्लैट के लिए अप्लाई करो, थिंग्स किसके लिए, फ्लैट क्लैट लॉ के वाले, थिंग्स विच कोइंसाइड विद फ्लैट है बड़े लोग। वन अनदर है कि ईच अदर है, क्या था, one another One another. Sir, things which coincide with same thing है. देख के बताओ, एक मिनट sir. आर इक्वल टू one another are equal to one another. वन So simple. अनदर, बोलो बात सही है। यस सर। तो क्या मैं AB को AC प्लस CB लिख दूं, यस सर। AB क्योंकि AB इससे कोइंसाइड कर रहा है तो इसके इक्वल होगा, AC प्लस CB। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि AC CB के इक्वल है, तो मैं CB की जगह BAC लिख दूं क्या, ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो बोलो क्या भी है? देखो BC लिखो या CB एक ही बात है, BC CB तो एक ही है, तो मैं इसकी जगह क्या डाल दूं, AC प्लस AC। ऐसा कैसे किया बताओ, क्योंकि AC किसके इक्वल है, BC लिखो या CB, तो मैं बोलो CB की जगह AC नहीं लिख सकता क्या, ACCB लिख सकते हैं, फिर से समझो, बोलो AC प्लस BC लिख दूं, ये ठीक लग रहा है अब आपको,
AC प्लस BC इनका सम किया, वही तो AB के इक्वल है। अब BC की जगह क्या डाल दिया? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो AC कैसे होगा? क्यों? अरे BC वो कहेगा ये दोनों इक्वल है, गिवन है। अच्छा ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। Hence proof. फिर से समझो। मेरा तो कहने समझ का आ गया। मेरे को नहीं है ना। ये देखो, ये AC है और ये BC है, कह रहा है ये इक्वल है, तो मैं AC प्लस CB लिखूं, यानी 2 प्लस 2 लिखूं, या AC भी लिख रहा हूं तो उस CB की जगह भी AC ही क्यों ना लिख दूं? क्योंकि वो जब इक्वल है तो मैं क्यों ना वही चीज ये लिखूं फिर ये लिखूं, इससे अच्छा इसी को 2 बार ना लिख दूं, है? यानी आप ये कह सकते हैं फुल पिज्जा इज हाफ ऑफ हाफ, ये डबल ऑफ हाफ पिज्जा। अब इसी का डबल कर दूं, BC की जगह मैं क्या कर दूं? AC. ये तो लिख सकती हो कि नहीं जो दिया, इसको तो दिक्कत नहीं है ना, तो इसे AC लिख दें। अब ये देखो AB किसके इक्वल हो गया? 2AC. 2AC। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि फुल पिज्जा इज डबल ऑफ हाफ पिज्जा, फुल रोटी इज डबल ऑफ Half roti. नहीं, ये चीज समझ में आई सौम्या? तो कहाँ half. से नहीं आई? ये आई नहीं आई? और फिर BC की जगह AC कर दिया। Sir, BC ये तो half. क्योंकि आपने क्या ना AC AC पूरा नहीं आता। AC है, AB है पूरा सही है। पिछली बार AC था ना ये पूरा। AC है, ये BC है, तो ये बोलो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? समझ गई। BC की जगह AC लिख दिया ही है, और 2AC। कहीं मैं इस 2 को उधर ले जाऊँ तो कि मेरा काम बन जाए, प्रूफ हो जाए। Yes sir. AB तो upon लिखो हाफ AB इज इक्वल्स टू AC। क्या यही प्रूफ करना था? चेक करो, AC इज इक्वल्स टू Half AB. हैंस। Proof. बोलो बात समझ में आ गई? Yes sir. अब हमारे पास ये बात तो आपको समझ में आ गई है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आप और करें, 6th क्वेश्चन। 6th और कराएंगे फिर छोड़ेंगे। टेस्ट नहीं लेंगे, ये बता नहीं करना, अब और टेस्ट लेंगे। ले लो। अगली बार तैयार करके आना, इसका टेस्ट होगा। सर परसों ले करवा दो। चलो, ध्रुव चुप हाँ रहना। ध्रुव दे देगा। ऐसी बात है देखो सर एक लगे करना चाहता अरे मैंने कब बोला? चलो, सिर्फ एक लगे खाली के बाद रुक के करना चाहता What is axiom number 1? ओके। क्वेश्चन करवा दो। 6th क्वेश्चन देखो, 6th देखो। कोई टेस्ट नहीं होगा। सुरक्षित करेंगे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर AC BD के इक्वल है, Then prove देखो that AD और C और ये B, AC किसके इक्वल है? BD. देखो ये लोग ठीक बता रहे हैं। तो गिवन क्या है? AC इज इक्वल्स टू BD। प्रूफ क्या करना है? AB AB इज इक्वल्स टू CD सर। CD. ये बात समझ आ गई? Yes sir. प्रूफ देखो। अच्छा, ये चीज गिवन है क्या? AC इज इक्वल्स टू BD, तो जो गिवन है उसे तो लिख सकते हैं, Yes sir. जो प्रूफ करना है उसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये लिख सकते हैं। ठीक है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। Yes sir. क्या मुझे दोनों तरफ से BC हटाने की अनुमति है? उससे कोई इक्वलिटी में लॉस तो नहीं हो जाएगा? No sir. तो क्योंकि अगर दो चीज इक्वल हैं और उनमें से मैं मान लो 5 के इक्वल है और मैं 5 में से भी 1 माइनस कर दूं, 5 में से भी 1 माइनस कर दूं, तो क्या ये तब भी इक्वल ही रहेंगे? Yes sir. तो if equals are subtracted from equal, subtracting BC from both side, क्या करने जा रहा हूँ? दोनों में से क्या subtract करूँगा? Side subtract. Subtract Given. BC from Both sides. both sides.
अच्छा जब मैंने ये किया देखो AC में से क्या किया BC सब्ट्रैक्ट किया और BD में से BC तो अमितेश बोल दिए सर आपने ये कैसे कर दिया। कैसे? तो ईशान ने बोला कि इसके लिए आपको एक्सियम नंबर 3 दी गई है जिसमें कहा गया है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, इसलिए हमने ऐसे किया। तो इनकी भी बात सही थी। तो ये किया जा सकता है क्या Yes, sir. बाई Subtract. एक्सियम नंबर 3 3 इफ Equals are equals are subtracted from subtracted equals. from equals then Sub- remains Then the remainders are remainder. फ्रॉम equal. इक्वल्स देन Then the remainders are Sir, then ये दार. द रिमाइंडर्स आर Equal. अर्पिता क्या तुम ये बता सकती हो कि ये जो AC है इसमें से मैं BC कट कर दूं, BC हिस्सा मुझे चाहिए ही नहीं, सीजर से कट कर दिया AB. जाओ, तो क्या बचा AC में से BC पार्ट कट, AB. तो क्या बचा AC बचा इसकी जगह। अच्छा सर ये देखो पर BC को कट कर दिया तो कैसे? है Sir, AC है और उसमें से BC हटा दो, हाँ. चलो हटा ही दो, हट गया है ना BC। Yes, sir. कितना बचा बोलो सही है तो सर वो इसी क्यों बोल दिया? Yes. हैं? अब देखो क्या तो बचा क्या AB बचा कि नहीं, AB लिखे कि नहीं, सही है। अच्छा कोई मुझे बताए BD में से कोई एक कैंची चला दे तो क्या बचा, ये हटा ही दो इसका फालतू काम, तो क्या बचा CD। कहीं तुम यही तो नहीं सोचा था कि यही प्रूव करना है। हो गया? वो भी क्या? पर कैसे हम हो गया? समझा देंगे, यही तो प्रूव करना था। Hence proof। समझ आ गया। ये बात समझ आ गई, फिर से समझो। ये 2 सेंटीमीटर और फिर ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ ये 5 है, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है क्योंकि 2 + 3 कितना होता है 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि AC किसके इक्वल है, क्या DB के, यस Yes, sir. और मैं इसमें से सर, आपने भी B- कम कर दूं और इस वाले में से भी कहो 3 से कि तुम हटो यहाँ से जरा, उससे भी कह दूं 3 है तो बचा कितना 2 2। तो क्या 2 इक्वल हो गए, यस यही तो इक्वल करना चाहिए। बस बहुत आसान है। नहीं समझाया, आगे इसको नोट कर लो। कर लिया कर लिया इतना ही कर लो। से कर लेंगे। इतना ही हमारे लिए तो